Success Mantra. We shape future. Hello everyone. So today we are with Siddharth, who has just got NLU Sonipat in the very first list of the CLAT, and just waiting for the more lists to come so that he can upgrade his college. So hello Siddharth. Hello, sir. So Siddharth, tell us something about yourself. Like apart from this introduction, in which class you are now and your complete schooling background and all. Sir, I passed class 12th in 2022 and it was my drop year for CLAT. Okay. Nice. So, Siddharth, as you were in Success Mantra, so was it a 1 year or 2 year program of yours? Yes, sir. मेरा ये 1 साल का था सर यहाँ पे प्रोग्राम, तो Okay, मैंने 1 so साल तक प्रिपरेशन करी थी. तो पूरा 1 साल के प्रिपरेशन के बाद you just appeared for the CLAT, right? Yes, sir. Perfectly nice, sir. So, Siddharth, but prior entering into the furthermore discussions like about CLAT and its strategies, reading and all, first tell me why law school and why law is a career option. Any prior feeling for it? Sir, to be very honest, I was interested in a law field since my class 8th or 9th, I guess. और शुरू से ही सर लॉ में इंटरेस्ट था, तो फिर आगे भी इसको एज अ करियर बनाना था. So I choose. So Siddharth, you are a first generation or a second generation lawyer, right? Anyone in your family? No, Isn't no, it? sir. I am first generation. Oh, that's perfectly nice, and it is very rare, like in the first generation lawyer, and we literally appreciate and this the thing, and congratulate you for the very best of luck in your future of your Yes. lawyering. So, Siddharth, you might have encountered like in the complete throughout the preparation, there is a you might have attempted some various mocks and past year papers also, Yes, and sir. you have come through there is a change in the pattern of paper, Yes, sir. before 2019 and after 2019. So, how it impacted your preparation and how you look about it? सर 2023 का जो ये पेपर था, सर पैटर्न तो सर कहूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा लेंथी मेरे को लगता है. जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा लेंथी था, जो कि था भी. एग्जाम Yes. बहुत लेंथी था और सर जो लैंग्वेज थी वो वो तो इजी टू मीडियम थी, वो डिफिकल्ट नहीं थी. लेकिन इस एग्जाम में स्पीड मायने मतलब मैटर करती थी. बस Exactly. स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन लेवल, दैट्स ऑल. Yes, nowadays CLAT is like कि आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी कंप्लीट रीडिंग वाले, जिसमें जी, आपको जी. बहुत अच्छे लेवल की रीडिंग करते हुए स्पीड मेंटेन करना है थ्रू आउट दैट टाइम, जी, right? जी. Perfect. So let's start from the section wise analysis. Right, we have 5 sections, and every student have their own strategy regarding each and every sections. So let's start from the English. How you tackle like this comprehensive? सर इंग्लिश आई वुड से कि इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन जो उसके सब क्वेश्चन थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग दे दिए थे. Okay. तो So in उसमें what sense how you feel like? तो सर मतलब उसमें इतना थोड़ा हो गया था, गड़बड़ा गया था मामला कि थोड़ा कंफ्यूजिंग थे क्वेश्चन बस. बाकी लैंग्वेज उसमें भी डिफिकल्ट नहीं थी, लैंग्वेज पूरी कॉम्प्रिहेंड बंदा कर सकता था, लेकिन वही थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया. In the end ये मैटर करता है कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी अच्छी है. जी, तो जी सर. जितनी जल्दी रीड कर लो उसको, उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा. मॉक्स में सर कर लेते थे, जैसे 5 to 6 मिनट्स में एक पैसेज पढ़ के कर लेते थे. लेकिन जो मतलब एग्जाम सेंटर में जो प्रेशर होता है वो हर बंदे के ऊपर होता है, चाहे वो कितना ही मना कर ले कि मेरे में नहीं है. एग्जाम सेंटर में जो प्रेशर होता है, फिर वो उसके हिसाब से आपको करना है वहां पे, वो मैटर करता है. यस, ये तो बहुत ऑनेस्टली आपने बताया ये कि एग्जाम सेंटर का प्रेशर थोड़ा सा मतलब आप कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर देता है. हाँ कितनी सर. अच्छी रीडिंग क्यों ना हो आपकी, लेकिन वो प्रेशर आपको 1-2 मिनट या 3 मिनट ज्यादा ले लेगा. यस सर. परफेक्ट. सो सिद्धार्थ, जैसे अभी जीके के सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बार का जीके सेक्शन स्लाइटली टफ था. जी. एंड एक ये चीज भी थी कि बहुत डेप्थ में जीके पूछी जाती है. तो इस सेक्शन को किस तरह से मैनेज किया और कैसे प्रिपरेशन किया आपने जीके के लिए? सर जीके तो जो अभी जो अपन करंट जो टॉपिक्स चल रहे थे, जो भी करंट करंट में था,
Yes. वो सब मतलब एनालिसिस लेते थे उसका यूट्यूब पे वगैरह पे, तो पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते थे। ये था कि जो अभी चल रहा है वो अपने को सब आता है, लेकिन हाँ. जब एग्जाम में देखा तो मतलब कुछ उन्होंने कुछ डिफरेंट पूछ लिया। जैसे ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बहुत ही डिफरेंट पूछ लिया, लेकिन फेमिलियर क्वेश्चन भी पूछे हैं। जैसे फीफा का पूछ लिया था, वो फेमिलियर था, वो हाँ. न्यूज़ में भी था उस वक़्त। तो सब लगा रहे थे अनुमान कि भाई कि फीफा के स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पीछे पूछेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ एलजीबीटी टाइप पूछ दिया, तो वो उनका कुछ वो नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक कि अब आपको जैसे कोई करंट अफेयर्स में चल रहा है, जैसे अभी करंट में हम बात करें तो कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट का बहुत लंबे टाइम से डिबेट चल रहा है, तो आपको पूरा एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। यस सर। अगर आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर 4 भी अटेम्प्ट करने हैं, तो यू शुड हैव लाइक अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक, यस, यस। तभी वो कुछ हो सकता है उसमें। सो सिद्धार्थ, आपने किस तरह से प्रिपेयर किया जीके के लिए थ्रू आउट द सेशन? लाइक क्या-क्या सर, सोर्सेज थे? my main source is the Hindu newspaper and daily news analysis the Hindu की, और मतलब it helped me a lot and it gave me a proper idea about how to manage all GK and जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं। लेकिन मतलब यही है, ओवरऑल यही है कि आप जो रिसेंटली चल रहा है उसको डेप्थ में पढ़ लीजिए, आप उससे रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिए। एग्जैक्टली। मतलब और जैसे एक टॉपिक चल रहा है, तो आप मतलब ये नहीं है कि आप उसी टॉपिक को मतलब पूरा डेप्थ में पढ़ लोगे, उससे रिलेटेड भी कुछ आ सकता है। हाँ, तो वो ये टॉपिक strategy वहाँ है। से कनेक्ट हो पाए, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी 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 सर। और इसमें जैसे आपने द हिंदू मेंशन किया, तो द हिंदू अगर करंट अफेयर्स के लिए बेनिफिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग हैबिट पे भी वो फोकस यस कर रहा यस सर। सर है। न्यूज़पेपर तो सर कोई सा भी हो वो इम्प्रूव करेगा, ओवरऑल वो आपको आपकी डेवलपमेंट करेगा। ये एग्जैक्टली। कॉम्प्रिहेंशन लेवल आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लस आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड उसके तो बहुत ही बेनिफिट्स हैं। अगर क्लैट की प्रिपरेशन ना भी कर रहे हो, तो एक नॉर्मल इंसान को भी मतलब न्यूज़पेपर तो रीड करना चाहिए। तो यही कहना है। एग्जैक्टली तो रहना चाहिए हर किसी को। मैं सर मैं अभी भी करता हूँ सर। मैं जैसे क्लैट हो गया, मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं नहीं, ये थोड़ा। अच्छी हैबिट है। इन पेपर पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। यस सर। जितना भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर ले, जब तक वो पेपर एक ट्रेडिशनल है, वो चलता आ रहा है। यस सर। सर जैसे परफेक्ट। बिगनिंग में जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन करना, तो जैसे एक एडिटोरियल पेज पे जाते थे, तो एडिटोरियल पढ़ने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता था, और मतलब आधा समझा आधा नहीं समझा, तो मतलब ये होता था। लेकिन प्रिपरेशन करने के टाइम पर ही मतलब 5 to 6 मिनट लगते थे एक एडिटोरियल पढ़ने को, और उसका ओवरऑल आइडिया हो जाता था कि उसमें ऑथर कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि मतलब वो पूरा ओवरऑल आपको आइडिया दे देते हैं। जब पैसेज भी वही होता है, यस। पैसेज में भी कुछ ऑथर कहना ही चाह रहा है, और एडिटोरियल में भी कुछ ऑथर कहना ही चाह रहा है। तो और ऊपर ऊपर से उससे प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। एग्जैक्टली। वो कहीं ना कहीं आपको सीए में तो हेल्प कर ही रहा है, डायरेक्टली कर रहा है वो तो, जी बट जी सर। कहीं ना कहीं वो रीजनिंग में, इंग्लिश में, लीगल में पढ़ने में हेल्प करेगा। यस सर। ये तो एक होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ फोकस करवाता है पेपर। यस Exactly, perfect. So, tell us Siddharth something about the reasoning section. Like, how was it for you? सर, रीजनिंग सेक्शन वाज, मैं कहना चाहूंगा सर कि मतलब ऐसा था कि आपको वो सोचने में मजबूर करेगा, कि ये नहीं कि आपने पैसेज पढ़ लिया और उसमें ऐसे आपको आंसर फाइंड हो गए। ऐसा नहीं था कि आपको प्रॉपर, मतलब ऐसा था कि अगर कोई बंदा स्किप करता है 2-4 लाइनें, तो क्वेश्चन में फंसेगा। तो मतलब उसमें तो पूरा वैसा हो रखा था कि डिपेंड करते थे क्वेश्चन इस पे, रीडिंग पे। अब जैसे फिर वही बात आ गई इन द एंड कि रीजनिंग के लिए भी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस सर। अगर रीडिंग आपकी इज रीडिंग या बिटवीन द लाइंस रीड करते हो, तो आपका एक बहुत अच्छा पकड़ बनेगा चीजों का। यस सर। Perfect. So it was just like a Siddharth law entrance paper. So how was the legal section for you? The सर most important section. लीगल सेक्शन वाज क्विट इजी बट लेंथी। Exactly. लेंथी Yes. था सर। जैसे कुछ उसमें पैसेज आए थे जो हमने एनालिसिस में भी करे थे। जैसे एक क्रिमिनल ट्रैक, उससे ट्रैकिंग सिस्टम से रिलेटेड था, एंड Yes. एक सरोगेसी एक्ट से रिलेटेड था, तो वो थोड़ा फैमिलियर था।
तो अपन ने देख लिया था कि ये फैमिलियर है, तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया था और उसमें भी अच्छा स्कोर है। फिर बाद में सारे वो भी मतलब थे इजी, लेकिन थोड़े लेंथी थे बस। अब ये फायदा होता है यहाँ पर कि ऐसे चीजों को, करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो करंट अफेयर्स में ही आएगा। जी वो जी किसी सेक्शन में डाल सकते हैं, वो लीगल का डाल के लीगल के क्वेश्चन बना सकते हैं उससे। जी 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 सर। इन एंड वो बेनिफिट करेगा कि पढ़ा हुआ है तो हाँ चलो ठीक है, ये तो अब आसानी से निकल जाएगा। जी सर। एग्जैक्टली। सो सिद्धार्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये जो सेक्शन है वो हर किसी को हॉन्ट करता है, ये परेशान नहीं करता है, ये लिटरली हॉन्ट करता है। एंड ये सेक्शन है मैथ्स। तो व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन द मैथ? एंड दिस ईयर मैथ्स वाज रियली टफ। सर मैथ्स में क्या था कि क्वेश्चन तो टफ थे, लेकिन जिसमें आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हो करने में, जो आपको लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा। आपको जैसे एक क्वेश्चन आपने लिया, वो आपसे आपने उसको टाइम भी दे रहे हो और वो नहीं भी बनना, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आप पहले ओवरऑल देख लो, फिर जो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे, आपको लग रहा है कि मेरे से बन जाएगा, तो उसे सेलेक्ट करके उसको बनाओ। एग्जैक्टली, ये चीज तो है कि आप मतलब पूरा पेपर आपको बनाना नहीं है, जी आपको जी एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचना है। जी तो उठने के लिए आप उन सेक्शंस में उन क्वेश्चंस को उठाइए जहां पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, या जहां पे आप आंसर अच्छे से कर सकते हैं, इजीली कर सकते मेन थिंग इज टाइम सर। हैं। हाँ, टाइम, वो टाइम मैनेज करके आप जितनी जल्दी वो आंसर निकाल लेंगे उतना जी बेटर। नहीं जी तो जस्ट लीव द सेक्शन। यस। सिंपल। परफेक्ट। So it was all about the CLAT. So Siddharth, you were from a like 1 year classroom program. How was your experience with Success Mantra? Sir, I would say कि I am very grateful for Success Mantra. They help me a lot, sir, and all the faculty is very good, sir, and uh, they provide you all the uh, study materials and all, and it will help you a lot. और जो जीके के मतलब डेली के करंट अफेयर्स मंथली में सीट्स मिलती थी, उसने बहुत हेल्प करा सर। और जो ये सक्सेस मंत्रा का जो यूट्यूब चैनल है, जो आप एनालिसिस लेते हो सर, वो तो सर माइंड ब्लोइंग है सर, वो बहुत हेल्प करता है। तो चलिए बढ़िया, perfect. So Siddharth, like before giving the CLAT, you might have attempted like 20, 30 or 40 mocks, right? यस सर। Which is the set criteria. So sometimes you used to get like low scores like 20, 30, 35, 40, ऐसे भी मार्क्स आते हैं कभी-कभी। जी So how you tackled these marks? सर, इसमें क्या है कि प्रैक्टिस इज द की, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना मुंह लगाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे और सर एक मेन बात है कि आपको ज्यादा मूव भी नहीं देने हैं कि आप मतलब जैसे एग्जाम से पहले आप ज्यादा ही मूव लगाते जा रहे हो, तो वो थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है। एक मॉक भी एक लिमिट में दिया जाता है, ना ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही कम देना है कि आपकी प्रैक्टिस ही ना बने, आप फैमिलियर ही ना हो एग्जाम से, एग्जाम पैटर्न से आप फैमिलियर ही ना हो। तो यही है कि सर मॉक तो सर बहुत मॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है सर क्लैट में। जितने मॉक दोगे उतने आपको प्रैक्टिस में आप मतलब अच्छा करोगे क्लैट। ये तो है कि क्लैट में बच्चे, एक ये चीज भी होती है कि मॉक्स दिए जा रहे हैं, बस दिए जा रहे हैं, मॉक्स देने के बाद उनकी एनालिसिस करने एनालिसिस, हाँ जी सर, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है सर। मॉक में नहीं होनी चाहिए। जी सर, वो आप ना सेक्स, ये एक मतलब स्ट्रेटेजी है कि आप जिस सेक्शन में आप वीक हो, आप उसको समझोगे आप क्यों वीक हो। ये मेन, एग्जैक्टली। जिसमें आप स्ट्रोंग हो उसमें तो चलो सही है, आप स्ट्रोंग हो आप कर लोगे, लेकिन जिसमें आपके कम आ रहे हैं, मॉक से मॉक होता है किसलिए सर, इसलिए मॉक होता है कि आप जिस सेक्शन में वीक हो, आप उस पर प्रैक्टिस करें और उसे इम्प्रूव करें। एग्जैक्टली, सबसे मतलब मॉक देने का इंटेंशन ही ये होना चाहिए। मॉक जी में आप बहुत ज्यादा स्कोर करके मतलब क्लैट नहीं ले रहा आपका सिलेक्शन, मॉक में जी भले ही 150 आउट ऑफ 150 क्यों ना जाए, जी बट मॉक का इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप अपनी गलतियां सुधारो उससे। जी सर, वो एक तो ये बात है, और एक ये बात है कि वो आपको ना एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर करा देता है, क्योंकि आप जो एक एक चीज आप रोज कर रहे हो या जितनी भी बार कर रहे हो, तो आप फैमिलियर हो जाते हो। हाँ, फिर वो क्लैट का दिन बहुत इजी निकलता है, थोड़ा सब्सटेंशियली इजी निकलेगा, जी जी ज्यादा इजी तो नहीं बट सब्सटेंशियली इजी निकलेगा वो दिन। जी जी सर। चलिए बढ़िया सिद्धार्थ। सो बट एट लास्ट वी हैव टू कंक्लूड द सेशन, बट बिफोर दिस, what are your messages to the future students, like you are senior to them, any message for them? सर माय एडवाइस इज नेवर टेक स्ट्रेस। बस आप स्ट्रेस फ्री रहिए, और आप
इतना भी स्ट्रेस फ्री नहीं रहना कि आपको कुछ पड़ी नहीं है क्लैट की, ऐसा भी नहीं करना। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और पढ़ाई करनी है, और थोड़ा सोशलाइज थोड़ा कम होना है लोगों से। बस एग्जाम से पहले थोड़ा आइसोलेट हो जाओ दुनिया से, थोड़ा पढ़ाई में फोकस करो, बस यही कहना चाहूंगा। परफेक्टली सेड की चिंता करो लेकिन कम करो, उतनी भी नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। जी जी। सही बात है। थैंक यू आदित्य फॉर दिस सेशन एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू।